السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اس اہم میٹنگ میں۔ آج جو اس موضوع پہ جناب ناظم الدین صاحب MCCI چیئرمین کچھ روشنی ڈالیں گے، تو کووڈ-19 پوسٹ لاک ڈاؤن اور پوسٹ کووڈ اکانومی آف انفارمل اکانومی، اس پہ گفتگو ہوگی۔ میرے خیال سے جب ہم میٹنگ کا آغاز رائٹ اوے کرتے ہیں، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، پارٹیسپینٹس تقریباً آ چکے ہیں، تو میں جناب ناظم الدین صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنا پریزنٹیشن انشاءاللہ پہلے آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام کا جو ہے استقبال اور ویلکم کرتا ہوں۔ ابھی جو ہمارے ماڈریٹر ہیں آج کے ڈاکٹر واسع احمد صاحب، یہ ان کا تعارف میں کرا دوں۔ یہ UK سے ریموٹ سینسنگ میں PhD ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے کافی اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ لگے ہیں، اور یہ 20 سال تک امریکہ جرمنی رہ کے اب ریٹرن آئے ہیں، تو یہ ان کا تعارف ہے۔ اور انشاءاللہ پوری جو ہے آج کی جو کاروائی ہے وہ ڈاکٹر واسع صاحب انشاءاللہ چلائیں گے۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آپ لوگوں نے شرکت کر کے ہمیں بڑی ہمت دی، حوصلہ ملا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری اس پوری ٹاک کے اندر دیر آر ماشاءاللہ 9 ڈفرینٹ اسٹیٹ سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد لوگ جوائن کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو جو ہے شروع کرنا چاہتا ہوں بغیر ٹائم ویسٹ کیے کہ، کیونکہ ہمارے پالیسی ٹائم کے جو اکرام الحق صاحب ہیں دہلی کے، وہ بڑے مہربان ہیں اور ماشاءاللہ کافی لیڈنگ پرسنالٹی ہے دہلی میں، تو ان کو 4:15 تک ہم نے ٹائم دیا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ میرے بعد وہ بات کریں گے، اور پھر سلمان بھائی ہیں، اور پھر تنویر صاحب جو ہے ہمارے پاس ایک بہت خاص پرسنالٹی ہے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر رورل اکانومی اور سوشل انٹرپرائزز میں ان کا جو کافی اچھا کام ہے اور کافی ایوارڈز لیے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ عرفان احمد صاحب بھی ہیں جو ماشاءاللہ سے جو ہے 30 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں پورا تعارف ایک کے بعد ایک جو ہے ڈاکٹر واسع صاحب بعد میں کرائیں گے میری گفتگو کے بعد۔ تو میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم میرے ساتھیوں اور پارٹیسپینٹس، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی آپ کے اپنے بیک گراؤنڈس اور اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے لوگوں کو سجیشنز بھی دیں گے، اور آپ کے سجیشنز انشاءاللہ لوٹ کیے جائیں گے۔ تو ہاؤ ٹو بلڈ دی انفارمل اکانومی پوسٹ لاک ڈاؤن جو ہے آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سچویشن اور حالات سے ہم لوگ آج گزر رہے ہیں، انتہائی خوفناک اور انتہائی تکلیف دہ حالات ہے جو سینچریز میں اس طرح سے کسی کمیونٹیز کو یعنی فیس نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اب 2 طرح کے ہیں، ایک تو میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آپ کو مسلمانوں پہ جو کریک ڈاؤن گزشتہ 1 سال سے ہو رہا ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ خود کورونا وائرس کا مسئلہ ہے۔ تو بڑے ہی ندم، علم اور بقا کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انفارمل اکانومی سے پہلے بھی گزشتہ سال ہمارے 3 اسٹیٹ میں مسلم اکانومی پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ آسام کے اندر مسلم اکانومی پہ 8000 کروڑ کا لاس اٹھایا گزشتہ سال۔ اس کے بعد UP کے اندر جو لیدر اور میٹ انڈسٹریز کو کلوز ڈاؤن کیا گیا ہے، اس میں 120 بلین کا مسلمان انڈسٹریز کا لاس ہوا۔ پھر تیسرا جو ہے کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا 6 اور 7 مہینے کے درمیان 1200 کروڑ کا جو ہے ڈائریکٹ لاس جو ہے وہاں کی اکانومی کا ہوا۔ اور آخری میں آپ نے دیکھا کہ جو دہلی رائٹس کے وقت جو جس میں 1200 ہمارے ورک شاپس اور 300 سے زیادہ جو ہے مکانات جلا دیے گئے، تو اس میں 25,000 کروڑ کا جو ہے مسلم اکانومی کا لاس ہوا۔ تو یہ ایک تو بیک گراؤنڈ تھا۔ اب جو انفارمل اکانومی ہے
اس پہ تھوڑے سے ہم سلائیڈز آپ کو جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے دوران گفتگو، آپ دیکھیں تو 90% ہماری کمیونٹی جو ہے انفارمل اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور انفارمل اکانومی ہی پہ مسلمانوں کی اس وقت پوری زندگی ہے، اور اسی سے ان کے جو ہے اپنے گھر چلتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے دو عظیم چیزیں ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے دی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم علمبردار علیہ اسلام ہیں، اور دوسرے ایک بہت پیارے وطن اور جو ہے دیش میں رہتے ہیں جو ہندوستان ہے، جہاں ہر قسم کی ہم کو الحمدللہ آزادی ہے، اور ایک جس طرح سے جٹو اور بٹو رکھنے والا شخص پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے، ہم کو بھی اسی طرح سے پوری کی پوری نہ صرف آزادی ہے بلکہ کانسٹیٹیوشنل ہم کو پروٹیکشن بھی ہے۔ اب اس معاملے کے اندر یہ اور ضرور بات ہے کہ تین جو ہم کو جو ہے پرزیکیوشن سے گزرنا پڑ رہا ہے، ایک تو پولیٹیکل پرزیکیوشن ہے، دوسرے جو ریلیجیس ہے، اور تیسرے اکنامیکل ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے اندر اس وقت مسلمان پیسا جا رہا ہے، یعنی اردو کے اندر اگر آپ کہیں تو سیاسی استبداد، سماجی استبداد اور معاشی استبداد، یہ تین بڑی طریقے سے ہم پہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، اور اس میں سے انشاءاللہ تعالی یعنی ہمیشہ کرائسس میں ہی ہم کو ایک اپرچونٹیز تلاش کرنی پڑتی ہے، اور اسی لیے آج کا یہ زوم کانفرنس بلائی گئی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی جو آل عمران کی جو مشہور آیت ہے وہ بڑی غور کرنے کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ہم نے تم کو اسی لیے بنایا لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، تمہیں خیر امت ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو بحیثیت کمیونٹی کے بھی اپنی کمیونٹی کا خیال رکھنا ایسا ہی فرض ہے جس طرح کے دوسری عبادتیں ہم پر فرض ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ حقوق اللہ ادا کرنے سے حقوق العباد ادا ہوتی ہے، یہ ہرگز پاسبل نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بیلنسڈ طریقے سے ہم کو مکمل طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو گزشتہ جو ہے ہماری جو اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے، وہ مودی سرکار اس کو 2 لاکھ کروڑ بتاتی ہے، جبکہ جو پرائیویٹ کیلکولیشن ہے 4 لاکھ کروڑ کی اکانومی اس وقت جو ہے ہماری جو ہے بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ تو اس پوری دور کے اندر جو انفارمل ہمارا جو اکنامک سیکٹر ہے مسلمانوں کا، اس میں میرے اپنے اون کیلکولیشن آپ ڈیفر کر سکتے ہیں، اس سے 40,000 کروڑ کا ٹوٹل ہمارا لاس ہوا ہے۔ 40,000 کروڑ کا آل اوور انڈیا مسلم انفارمل اکانومی کا لاس ہوا ہے، اور پھر اس کو لاس کو کس طرح سے ریکور کیا جائے۔ اب اس میں 3 الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں جس کو ہم کو سوچنا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو وینڈارز ہیں اور جو مختلف قسم کے جو ہے ٹریڈز چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، جو 41 ان ٹوٹل سیکٹرز کا ہم نے جو ہے اس کو جو ہے شارٹ لسٹ کیا ہے، وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارا شعبہ اور سیکٹر ہے وہ اسکلڈ ٹیکنیشینز کا ہے، جس میں پلمبرز ہیں یا پھر کمپیوٹر ٹیکنیشینز ہیں، موبائل ٹیکنیشینز ہیں، الیکٹریشینز ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا جو ہے جو سب سے غریب جو لوئسٹ طبقہ ہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں ڈرائیورز کا ہے، چاہے وہ آپ ٹرک ڈرائیورز لے لیجئے، آٹو ڈرائیورز لے لیجئے یا ٹیکسی ڈرائیورز لے لیجئے۔ یہ تینوں سیکٹر ہمارے بری طریقے سے متاثر ہے، اور ابھی بھی ان کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے پھر سے جو ہے ریگین کر سکیں گے۔ اب جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہے 20.77% more poorer than the other communities۔ تو پاورٹی میں سے اور الٹریسی میں سے کس طرح سے مسلمانوں کو جہالت اور غربت میں سے نکالا جائے، یہ تو ایک مستقل سوال ہے۔ لیکن اب جو ایمرجنسی جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم مائکرو کریڈٹ اسکیمز، کمیونٹی مائکرو کریڈٹ اسکیمز کس طرح سے جو ہے شروع کریں، جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ CMCS۔ اس کے اندر جو ہے ہم جو کانسیپٹ اس وقت دینا چاہ رہے ہیں وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ہر سیکٹر کو، ہر سیکشن کو اس وقت موٹیویٹ کیا جائے، اکنامک اویئرنیس ان میں پیدا کیا جائے، اور اس اویئرنیس کے ذریعے جو ہے یہ جو سیکشن آف دی سوسائٹی ہے جو بہت زیادہ جو ہے ڈپرائیوڈ ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈسٹریس میں ہے۔ تو ڈسٹریس فائنانسنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آج کے دور کے اندر۔
क्लिनिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करने की जरूरत है कि इन छोटे छोटे गांव की सतह पे, शहर की सतह पे इन छोटे हमारे कारोबारी लोगों को और जो टेक्नीशियंस को और ऑटो ड्राइवर को किस तरह से हम उनके पैर पे खड़ा कर सकते हैं। मैं वो डिटेल रिपोर्टिंग में नहीं जाना चाहता। जो बीजेपी स्टेट्स के अंदर जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट्स वेंडर्स और ठेला बंडी वालों के साथ, खोचा फरोशों के साथ जो हशर हुआ है, जो उनके साथ मारपीट की गई है और उनके जो कुछ जो है कारोबार थे उसको तबाह करने की कोशिश की गई है, तो खैर हम बहैसियत उम्मत इस्लामिया इन चीजों को बड़े सब्र और सुकून के साथ इंशाअल्लाह हम टैकल करने की अहलियत रखते हैं और करेंगे। विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम्स एक नया सब्जेक्ट हिंदुस्तान में आपको दिखेगा कि ऑलरेडी जो विक्टिम है उनको और विक्टिमाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारी इसकी तफसीलात मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये है कि ये जो यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात है, क्लिनिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, वो किस तरह से, किस लेवल पे, किस तरह से टेक्निकली उसको स्ट्रक्चर्ड करके किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो है तकरीबन 8 अलग अलग चीजों को हम कर सकते हैं। नंबर एक तो ये कि आप इंडिविजुअल लेवल पर इन छोटे छोटे कारोबारी लोगों को पर्सनल खर्च दे सकते हैं। नंबर 2, ये सेविंग जो है क्लब्स होते हैं, जो लोग जो है अपनी सेविंग्स को जमा करके इनको कलेक्टिवली जो है इनको चंद दिन के लिए विदाउट इंटरेस्ट के पैसे दें। और नंबर 3 जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मुसलमानों के इंटरेस्ट फ्री, उनके जरिए इनको फाइनेंस करने की कोशिश करें। और नंबर 4 जो है माइक्रो फाइनेंस के जो इदारे हमारे हैं उन पे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर इसके लिए कोई ऐसी चीज जो है डिजाइन करें जो ये लोग आपसे हमसे अप्रोच करके इस काम को जो है आगे बढ़ सकते हैं। 5वां जो हमारा 1400 साल पुराना जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी वो इदारा है वो बैतुल माल है। बैतुल माल जो है वो उसका काम ही यह है कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो नीडी हैं, पुअर हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत जो है पूरी बैतुल माल से की जाए और बैतुल माल से मदद की जाए। तो इसके बाद जो है एक अलग चीज जो है, छठी जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इस कॉज के लिए बनाया जाए, शहरों के अंदर हो या गांव में हो, जिसमें हर जमात और तंजीम के लोग हो सकते हैं। एसपीवी जो है तो सीएफए के लिए तो वो आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद जो है ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड हमारे खास तौर से जो मशहूर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर दीनी मदारिस हैं और जिसके अंदर मॉडर्न स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह आप देखेंगे माशाल्लाह हम लोगों का प्रेजेंस है। तो इस वक्त इमरजेंसी में हमको कलेक्टिव ये जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि इन स्कूल के मैनेज वालों से बात करें। ये उम्मत की अमानत उन लोगों के पास है, वो इस सिलसिले के अंदर जो है अपने आप को जो है आगे ले आएं और कोऑपरेट करने की कोशिश करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी हम अपनी कम्युनिटी को जो एजुकेशन से अटैच्ड है उनको भी हम इन्वॉल्व नहीं कर सके तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। तो उसके बाद जो है मसाजिद कमेटियों की जिम्मेदारी है। मसाजिद कमेटियां जिस इलाके में ये गरीब मुसलमान रहते हैं वहाँ उनके लिए एक ही होप होती है, वो मस्जिदों की अज़ाओं से, वो मस्जिदों की मरकजियत से जो जुड़े होते हैं गरीब लोग। तो मस्जिद कमेटियां जहां दियानतदार मुखलिस मस्जिद कमेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस क्राइसिस के अंदर वो आगे बढ़ें और हमारे छोटे छोटे जो है कारोबारी लोगों को और बिजनेसमैन को जो है उनकी हेल्प करें। आपको बताऊं कि 2 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक तो एक टोटल कारोबार क्रश हो गया है और दूसरा एक स्किल जो टेक्नीशियंस है उनके अंदर ऐसी बड़ी गफलत आ गई है और इतनी लेजीनेस और लॉजीनेस आ गई है कि वो इस वक्त निकल के काम करने के लिए आमादा नहीं हो रहे हैं। कल मुझे एक बड़ी मोहतरमा बड़ी भी का एक फोन आया और वो बेचारी बार बार जो है फूड किट्स के लिए पूछ रही थी। तो हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपके शौहर नहीं है, इंतकाल कर गए, आपके बेटे कहाँ हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा कि मेरे दोनों बेटे और दोनों घर में सो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब बकरीद तक कुछ काम नहीं है, हमको सोने दो। और 1 बज रहा था दोपहर का, आप अंदाजा कीजिए। तो दोनों तरफ भी लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। ये मामला इतना आसान नहीं है कि लोग अपने जो है जज्बा पैदा करके आगे बढ़े। जब तक आप इनको पुश नहीं करेंगे
اور ان کے اندر ایک مومنٹم پیدا نہیں کریں گے اور ان میں ایک جو اویئرنیس نہیں لائیں گے تو یہ قوم ابھی بہت زیادہ غفلت میں اور یہ سمجھتی ہے کہ آسمان سے کچھ چیزیں نازل ہو جائیں گی اور ان کو مل جائیں گی. ہماری کمیونٹی کے علاوہ دوسرے کمیونٹیز بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 40 کروڑ نہیں 13 کروڑ عوام جو مائیگرینٹ لیبر سے اور روڈوں پہ تھے اور کس بدترین طریقے سے یہاں کی حکومت نے ان کے ساتھ سلوک کیا. تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر چیز جو ہے آسمان سے آ جائے گی یا لوگ جو ہے سعودیہ سے بھیج دیں گے, امریکہ سے بھیج دیں گے؟ تو یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا ایک پرسنل اوپینین اور سجیشن یہ ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, کیونکہ میں مسجد کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں تو اس کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ اور گاؤں میں الحمدللہ ہمارے یہاں پر بڑے بڑے عیدگاہیں ہیں اور جامع مساجد کی بھی جگہیں ہیں اور اوقاف کی بھی جگہیں ہیں. اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی اگر پنچایت کی بھی جگہ ہو تو اس کو مہینے میں 5 دن ایٹ لیسٹ جو ہے ان کو ہائر کیا جائے اور وہاں پہ کمیونٹی مارکیٹ لگائی جائے. ایک ہفتہ آپ جو ہے ویجیٹیبل مارکیٹ لگائیں, ایک ہفتہ آپ جو ہے کلاتھس اینڈ جو الیکٹرانک گڈس کی لگائیں, ایک ہفتہ جو ہے سیکنڈ ہینڈ گڈس کی لگائیں. یہ اتنا کامیاب ہوگا اور اس میں آپ نامینل جو ہے اس کو رینٹل چارج کریں. اگر یہ اسکیم آپ کی سکسیس ہوتی ہے تو آپ کو آرگنائز وے میں ان کو اور ان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آسانی ہوگی اور یہ ماڈلز کئی جگہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم جو ہماری پوری کمیونٹی کا جو حصہ ہے جس میں ہم ہمیشہ اگنورینس کا شکار ہوئے ہیں وہ ہے ایس ایچ جیز یعنی سیلف ہیلپ گروپ. سیلف ہیلپ گروپ کے اندر جو ہے لیڈیز کے سلسلے میں خواتین کی جو اس وقت چھوٹی چھوٹی جو ہے آرگنائزیشنز اور سوسائٹیز کام کر رہی ہیں آل اوور انڈیا, اس میں مسلم جو ایسے جیز ہیں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے بہت ہی یعنی جو ہے پرفارمنس بھی پور ہے اور ان کو کوئی کوآپریٹ کرنے والا کمیونٹی میں ملتا نہیں ہے. جبکہ دوسری کمیونٹیز کے جو ایسے جیز ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے جیز بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اور وہ ایس ایچ جیز کے پاس بہت زیادہ سورسز آتے ہیں, وہ ملینز اینڈ بلینز میں ڈیل کرتے ہیں. اب اس کے اندر کیا طریقہ ہے جو ایس ایچ جیز کے اندر میں 2 کانسیپٹ آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جاپنیز کانسیپٹ ہے اور بہت زیادہ سکسیسفل ہے, ہزاروں سال سے چل رہا ہے. ایک تو وہاں جاپان میں روسکا اور اسکا کے نام سے 2 اسکول چلتے تھے. روسکا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 15 ممبرز ہوتے ہیں اور 15 ممبرز جو ہے another 1000 ممبرز تک بھی وہ اپنے سروسز ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لون کے ڈیٹس کے کریڈٹس وغیرہ کے. اسکا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ممبرز کی اونرشپ ہوتی ہے, یہ کسی کو دیتے نہیں ہے, دے بھی ہے تو پروفٹ کے بیس پہ دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے سیونگ کلب بنانے کا روسکا اور اسکا کا جو نئے کانسیپٹ ہے ہم ان کو برابر یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور رورل اکانومی کے اندر بہت بڑی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارے دوسرے ساتھی وہ بھی اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے. تو میری جو ہے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے ہم نے یعنی سوشل انٹرپرائزز کے سلسلے میں مائکرو کریڈٹ اسکیمز کے سلسلے میں جو اب آج جو ٹاک اوپن اپ کیا ہے آپ اس کو اینڈ نہ سمجھیں بلکہ یہ تو فوڈ آف تھاٹس ہے, صرف اوپننگ کے لیے ہم نے جو ہے بات رکھی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور سارے ہندوستان میں الگ الگ ماڈلز پہ ہم کو کام کرنا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے شبیر بابا اننت ناگ کشمیر سے بھی جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ میں اور خاص طور سے لیڈیز کے جو اس سے چیز میں بہت کام کرتے ہیں, ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. تو یہ ہم نے اب بنگال سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے شاہ عالم صاحب ہیں, وہ بھی جو ہے 20-25 سال سے جو ہے اس میں کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ خمر الزمان صاحب ہیں اور ان کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر نور الاسلام صاحب ہیں. یہ لوگوں کی جو بہت بڑی بنگال کے اندر جو ہے بنگال مسلم یوتھ فیڈریشن کے نام سے تنظیم ہے. ان سے ہم کو ماشاءاللہ بہت تجربہ ملا اور ہم ہر ایک یعنی اسٹیٹ کے لیے الگ الگ ماڈل بنانا پڑے گا. آپ یہ نہیں ہوگا کہ ایک سینٹرلائز ماڈل ہی ہر جگہ چلائیں, وہاں کی لوکل سچویشن کے حساب سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے چیز کو ایوالویٹ کریں گے اور لوگوں کے انپٹس لیں گے اور کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی, وقت یہ ہے کہ ہم جو ہے صبر سے کام لیں, صبر کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں. فَاصْبِرُوا كَمَا صَبَرُوا أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسا کہ سورہ احقاف کے اندر 35 میں بتایا گیا کہ بھئی صبر کرو جیسا کہ تم کو جو ہے جیسا اولی العزم جو رسول صبر کیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سچویشن کے لیے فائٹ آؤٹ کرنا ہمارے
غریب مسکین لوگوں کو سکھانا ہے. اگر کوئی آپ کی بنڈی کو کیلا بنڈی کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کا ہمارا کام ہے کہ وہاں کے جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ریلیجیس لیڈرز ہیں, جماعتوں کے لوگ سب جائیں پنچایت کے لیڈر کے پاس, ایم ایل اے کے پاس, ایم پی کے پاس اور ڈی ایم کے پاس اور پوری طریقے سے ایجیٹیٹ کریں اور وہاں اپنا پیٹیشن داخل کریں کہ بھائی اس کا کیا قصور تھا جو اس کے جو ہے چھوٹے بزنس کو ڈیمیج کیا گیا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے. تو حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. زندگی کا بڑا حصہ 70 سال نے ہم اپنے آپ کو عیش و عشرت کے اندر, ہم اپنے آپ کو اپنے جو ہے ایئر کنڈیشن گھروں کے اندر ہی محدود رکھ لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کمفرٹیبل لائف کے اندر اپنی ٹاک اپنی ڈسکشن کو محدود رکھیں اور اسی اعتبار سے امت کی خدمت کریں. میرے عزیزان گرامی, آپ کے خیالات, آپ کے سجیشنز ایکسکیوز می somebody disturbing please off mic off کیجئے مائک کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی ہمارا جو انوالومنٹ ہے ہر کمیونٹی یعنی مسلم گھر سے ایک ایک بچہ ضرور انوالو ہو, ایک ایک شخص انوالو ہو. تو ایسے نہیں, اس سے بڑھ کے بہت بڑی چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اور بغیر انوالومنٹ کے اور بغیر پریکٹیکل ہمارا جو ہے اگر اس میں شیئر نہیں رہے گا تو ہم اور بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. آئندہ آنے والی جنریشن خدا نہ خواستہ اور غلامی میں جانے والی ہے. جس قسم کی گورنمنٹ ہم پہ مسلط ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہ ہے کہ غفلت میں اللہ تعالی ہم کو اب معاف نہیں کرے گا. جیسا میں گزشتہ 2-3 مہینے سے 3 باتیں کہہ رہا ہوں, پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ہم کو 3 کام کرنے ہیں. ایک تو ایگزسٹنس کے لیے, دوسرے پروٹیکشن کے لیے اور تیسرا جو اہم کام ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ 3 کام اگر ہم کر لیں گے تو اس صدی کی سب سے بڑی ہماری سروس رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے 30 منٹس تقریباً الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں اور میں نے اپنا جو ہے یعنی ٹاک یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں. بعد میں جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو میں اس میں اور ایڈ کروں گا. اب اس کے بعد میں مائک جو ہے ہمارے اکرام الحق بھائی کو دیتا ہوں چونکہ وہ جانے کی جلدی میں ہے. تو پلیز اکرام بھائی آپ کنٹینیو کیجئے. جزاک اللہ خیر. ہمارے جی السلام علیکم سر. جی جزاک اللہ, شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت. اور ماشاءاللہ فاروقی صاحب کی بات میں پوری باتیں آلموسٹ کور ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو کئی ساری چیزیں جاننے بھی ملی. 3-4 باتیں جو سر نے کہی کہ جو حالات ہمارے ساتھ میں ہوئے, 4 ڈیزاسٹر جو کاؤنٹ کیے, آسام والا, اس کے بعد میں دلی والا اور ابھی کشمیر کا بھی لاک ڈاؤن, اور یہ جو 4 باتیں جو بتائی آپ نے, کئی ہزار کروڑ کا جو نقصان ہوا ہے. سر میں 5ویں ایک اور التجا اس میں جوڑنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت ہمارے ساتھ میں جو ہوتا ہے وہ ہم کو کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی توڑنے کے لیے ایک ایسے انسیڈنٹس کیے جاتے ہیں جو اسمال انسیڈنٹس ہے لیکن اس کا امپیکٹ لارج ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. اور وہ کرونالوجی چل رہی ہے کہیں نہ کہیں موب لنچنگ کے ذریعے, کہیں نہ کہیں گو کشی کے بہانے سے, اور ابھی فائنلی ابھی ہم کو ہمارے وینڈرز وغیرہ کو نہیں لا کر نئے علاقے میں انٹری وغیرہ نہیں دینا. یہ سارے جو انسیڈنٹس ہے یہ ہم کو کہیں نہ کہیں مورلی ہم کو اور سائیکولوجیکلی توڑنے کی کوششیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا اینالائز کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس طریقے کے انسیڈنٹس کم ہیں, ان کا پروپوگیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کئی بار غلطی سے ہمارے سے بھی ہو جاتا ہے. ہم بھی اس کو بہت زیادہ فارورڈ کر دیتے ہیں آگے کہ ہمارے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کو علاقوں میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ میں مارجنلائز کیا جا رہا ہے, ہم کو سیپریٹزم میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن جو پازیٹیو انسیڈنٹس ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی کمیونل ہارمونی کے جو انسیڈنٹس ہے, سپورٹ سسٹم جو ہمارے لیے ڈیولپ ہوا ہے, اور باوجود سارے ہیٹرڈ کمپین کے 5-6 اسٹیٹ میں جو بعد میں جو سیکولر اور بہت اسٹرانگ گورنمنٹ ابھر کے آئی ہے اور انہوں نے ہمارا جو دفاع کیا, پروٹیکشن کیا, مہاراشٹر گورنمنٹ اس کا ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے. تو وہ چیزیں بھی بہت بڑھ چڑھ کر ہے. اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران میں 2-3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ بہت زیادہ جو سیلنگ ہوئی ہے وہ فوڈ پروڈکٹس کی ہوئی ہے, ویجیٹیبلس کی ہوئی ہے. اور الحمدللہ
ऑर्गेनाइज वे में जहां पे नहीं हुआ वहां पे इस तरीके का हेटेड कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा सबसे जो ज्यादा कंज्यूम इस लॉकडाउन के पीरियड में 60 दिन में जो चीज हुई है वो मटन और चिकन हुआ है, और वो दोनों भी चीजें हमने बेची है। और उसके अंदर एक पॉजिटिव एक बात यह आई है कि 15 से 18 और 20% हाइक में बेची गई है दोनों चीजें। यानी अगर एक गोट मीट अगर 500 रुपए या 550 रुपए केजी जाता था तो 700 रुपए गया है, और वहां किसी ने ये नहीं बोला कि ये XYZ की दुकान है और इससे मत लो। तो हमने उन चीजों की तरफ में ध्यान नहीं दिया, साइकोलॉजिकली उसका हमने इंप्रेशन नहीं लिया, क्योंकि अगर ये चीजों को अगर हम जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है कौम को, और हम अगर इसमें फंस जाते हैं तो ये चारों डिजास्टर से बहुत बड़ा नुकसान इसके अंदर में हो जाता है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने 2 बातें कर दी कि रोजे में रहते हुए भी सबको खाना खिलाया, पानी पिलाया, खिदमत की, पूरे कंट्री में बता दिया, डेड बॉडीज तक के हमने कैरी की गैर भाइयों की, हमने सारा सब कुछ भुला के अपने आप को निछावर कर दिया। प्लस हमारे जितने भी कबाड़ी थे, छोटे वेंडर्स थे, लेबरर्स थे, इवन काम वाली बाइयां थी, मेड थी, उन्होंने अल्टरनेट बिजनेस ढूंढ लिया 60 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा छोटा बिजनेस। उन्होंने सब्जी भाजी, चिकन मटन सप्लाई, जोमेटो बॉय और ये सब करना शुरू कर दिया। सो पांचवी चीज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट करें, इस पॉजिटिव वेव को, इस पॉजिटिव एनर्जी को इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां तक कि रूरल का सवाल है सर, रूरल इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आ जाता है कि ये कुछ अलग पार्ट है, कुछ इंडिया और भारत का डिफरेंस वहां पे क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम किसी और मुल्क के बारे में, किसी और चीज के बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ बड़े अदब के साथ में कि ये रूरल जो इकोनॉमी है, अगर हम इंडिया को एज ए बॉडी ले, अगर हमारा पूरा शरीर समझे अगर हम, तो रूरल जो है उसका हार्ट है एंड स्टमक है, पेट है, वो सेपरेट नहीं है इसके, और टोटली इफेक्ट करता है अर्बन के पूरे सिस्टम को। आज हमारा जितना भी स्प्रॉल जो फैला हुआ है वो माइग्रेशन की वजह से फैला हुआ है, और इसी निग्लिजेंस की वजह से फैला हुआ है कि हमने रूरल की तरफ में ध्यान नहीं दिया, हम उसको मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट रखा है और रखे हैं। लेकिन कोविड ने हमको एक बहुत अच्छा चांस दिया है, गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा चांस दिया है कि हम उसका रिवाइवल कर सकते हैं, हम उसको दोबारा रीजिनोवेट कर सकते हैं। अभी एक बारिश का सीजन है, अभी देखिए पूरा इंडिया हार्वेस्ट नया लेने के चक्कर में, सोइंग के चक्कर में, सीड पीरियड प्रिपरेशन के चक्कर में है। अभी सारे इनपुट्स, मेजर इनपुट्स, सीड वाला इनपुट हो, फर्टिलाइजर वाला इनपुट हो, वीडिसाइड वाला इनपुट हो, पेस्टिसाइड वाला इनपुट हो, या और इक्विपमेंट हो, या उसको सपोर्टिंग चीजें हो, या कैटल हो, या डेयरी हो, या और हाईटेक एग्रीकल्चर के जितने भी सिस्टम हो, मेजॉरिटी में जो हम परचेस कर रहे हैं, अगर हम एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेस्टिसाइड लेते हैं 5,000 रुपए का, तो आप यकीन जानिए कि उस 5,000 रुपए में रिटेलर को, ट्रेडर को, डिस्ट्रीब्यूटर को कटने के बाद में 3,500 से 4,500 रुपया फॉरेन जा रहा है। वो वही पेस्टिसाइड बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको इंडिया में लोकली, हम उसको जीवामृत कहते हैं, पर्णकुशी कहते हैं, बहुत कम कीमत में हम लोग तैयार कर सकते हैं। अल्टरनेट हमारे पास में है और हमको जरूरत भी नहीं है, और जब नॉन अवेलेबिलिटी होगी तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। यही सेम सारी चीज सस्टेनेबली, जिस इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करते हुए, इकोनॉमी को ना गिराते हुए, अल्टरनेट वेज की तरफ में अब गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। और हमारे पास में, हम यूथ फोर्स की सबसे बड़ी बात करते हैं कि हम कई बार अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारे पास में 2/3 मेजॉरिटी अभी यूथ होने वाली है, जो कि 30-35 की एज तक के एवरेज एज में है। अब उसमें और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा तबका माइग्रेट कर चुका है, वो यूथ अर्बन में भी है, वो यूथ रूरल में भी है। आज हम मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उन जरूरतों को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जी तनवीर, तो माशाल्लाह काफी मतलब आप इसमें रोशनी डाले हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के ताल्लुक से। आगे बात बढ़ाते हुए इंशाल्लाह दूसरे मेहमानों को, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं भी दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली निज़ामी साहब को, जो दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। आप हैं चेयरमैन निज़ामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो नाजिम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, ये बहुत खुशी का मौका है, एक बहुत अहम और जो वक्त का तकाजा है, ये प्रोग्राम जनाब नाज़िमुद्दीन साहब ने शुरू किया, और वाकई इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दरअसल ये एक
ان کی بہت گہری سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کا ویبینار انہوں نے جو قائم کیا ہے، اور ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ واقعی تعریف کے قابل ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ابھی بتایا کہ سیلف ہیلپ گروپ، مساجد کمیٹی اور ویکلی مارکیٹ کنسیپٹ وغیرہ، تو واقعی یہ ایک پریکٹیکل چیزیں ہوں گی اور ان کا ہمارے جو ہے سوسائٹی پہ ضرور اثر پڑے گا. اور بھی دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا، سجیشنز دیے اپنے اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، وہ واقعی قابل تعریف ہیں. اور ہم سب لوگ مل کر اگر ان پر عمل درآمد کرائیں گے تو یقیناً ایک قوم میں ترقی کی لہر پہنچے گی اور کامیابی، اور لوگ جو ہیں اپنے مستقبل کو اور بہتر بنا پائیں گے. یقیناً میں ہر طریقے سے آپ حضرات کے ساتھ ہوں. دلی اور دلی کے اطراف میں جتنے بھی ضلع ہیں، وہاں پر جس طرح کی بھی امپلیمنٹیشن کا کام ہے، اس میں دل و جان سے آپ کے ساتھ رہوں گا، اور انشاءاللہ اس مہم کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. جناب مشتاق لہری صاحب کو جو انڈسٹریلسٹ ہے، مشفق لہری صاحب کانپور سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کانپور یوپی سے ہوں، اور میرا گارمنٹ کا کام ہے اور ہوزری کا کام ہے. ہوزری انڈر گارمنٹس، فیبرک بھی بناتا ہوں، پروڈکٹ بھی بناتا ہوں، اور ریڈی میڈ گارمنٹس میں مینس ویئر ٹراؤزرس وغیرہ کا کام ہے. اور یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو لاس ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے سبھی لوگوں کا. اور یہ کانپور کے اندر خاص طور سے اس میں اپنی کمیونٹی کے لوگ، بہت لوگ انوالو ہیں، اور خاص طور سے چھوٹے لوگ اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائے ہیں. ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ورک شاپ ہے، ان لوگوں کا اسٹیچنگ یونٹس ہے، یہ قریب اس سمے سب بند کے کگار پہ ہیں. اس کو کیسے چلایا جائے، اس میں فاروقی بھائی کی کچھ رائے بھی چاہیے، اور گائیڈ لائن بھی کس طرح ملے جس پہ ہم لوگ یہاں سے ہینڈل کر سکیں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں منصور احمد قریشی صاحب کو، جو لکھنؤ سے ہے، وہ بھی تاجر ہے. منصور صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظم بھائی کی یہ تو ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے اس چیز مہم میں لگے رہے ہیں، اور فکر رہتی ہے ان کو خاص کر کے قوم کے اور لوگوں کی. اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمیشہ ہم جڑے رہیں گے. ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. ایک چیز ہم لوگ کو بہت پہلے سب کی ہم نے بات سننی، ہم لوگ کو پچھلا ریکارڈ پہ دھیان دینا چاہیے. ناظم بھائی ہم لوگ نے بہت ٹائم سے چلیے شروع ہو گیا ہے، اس کو ختم نہیں، اس کو مہم کو بہت آگے بڑھانا ہے. اس کے پچھلا ریکارڈ آپ دیکھیے، جب 47 آزادی کے بعد سے جو ہوا ہے ہندوستان میں. اب بھاگلپور میں دنگا کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلمانوں کا کاروبار تھا ریشم کا. تو بھاگلپور کا دنگا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کا کاروبار ختم ہو گیا. اور اس کو دیکھیے کب ہم لوگ کو سوچنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد مراد آباد کا جو دنگا ہوا، وہاں پہ مسلم کا کاروبار تھا، وہاں سے ختم کیا گیا مسلمانوں کا کاروبار. بنارس میں تو جو دنگے جو اسٹیٹ شہروں میں ہوتے ہیں جہاں پہ مسلمان بہت، تو ایک ہم لوگ کا اب جو ابھی شروعات ہوئی ہے، ابھی ہم لوگ کو 3-4 چیزوں پہ بہت دھیان دینا چاہیے. ابھی جو پریزنٹ ٹائم کی سرکار نے جو ایک سب سے چیز جو ہم لوگ کی چمڑا کا جو بہت بڑا کاروبار تھا، انڈیا سے بہت بڑا کاروبار تھا چمڑے کا، اس میں مسلم کمیونٹی کو بہت زیادہ پروفٹ تھا، فائدہ پہنچ رہا تھا. اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا کہ دیکھیے آپ بکرے کی ہو یا کسی کی کھال بھینس کی، بفلو کی، تو وہ بھینس کی کوئی قیمت کے کھال کا چمڑے کا نہیں رکھا. اب اس پہ ہم لوگ کو ایک اگر دھیان دیتے ہیں سب لوگ مل کے ٹیم میں، تو اس پہ کام کیا جائے کہ ہم لوگ ان کا مال ہم لوگ اپنے ہی کنٹرول میں کر کے، ہم لوگ ملکوں دوسرے چائنا ہے، جاپان ہے، جو کنٹریاں لیتی ہیں لیدر، ان سے ڈائریکٹ ہم لوگ اس کا مال یہاں سے پرچیز کر کے جو اپنے لوگوں کو، اب بتائیے 2 روپے کی 5 روپے کی کھال جو 200 روپے کی بکتی تھی، تو اس کو پھینکا گیا اس بار. اس سے پہلے بقرعید میں زمینوں میں گاڑ دیا گیا. تو ہم لوگ کو انہی نے، ناظم بھائی نے کیا ہے. ہمیں اور بھی چیزیں ذہن میں ہیں، بہت کم ٹائم ہے، شارٹ ٹائم ہے، شارٹ ٹائم میں ہم اتنی بات کیسے کہہ سکے، مطلب جتنا کہہ رہے ہیں انہی نے کام کیا، اس میں ہم لوگ اور بھی چیزیں میرے پاس ہیں جس کو ایڈ کر کے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. ایک ہم لوگ کو اور مہم یہ چلانا چاہیے، خاص کر کے بڑے میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے ہر شہر میں، ہر محلوں میں، جس پہ 15 سے 20 لڑکے ہوں، اور وہ 200 روپے 300 روپے مہینہ صرف نکال کے جو غریب گھر کے بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، اسٹڈی کرانے کے لیے. تو اس سے تو اب یہ بہت شارٹ ٹائم ہم لوگ کو ایسا ایک
प्रोग्राम और जल्द से जल्द रखना है जिसमें पूरी तैयारी करके हम लोग अपने अपने कम से कम एक आदमी को आधे घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग हैं आधे घंटे का समय, जो मेन इम्पोर्टेंट क्या है इससे हम लोग को किस तरह से मुसलमानों को तरक्की की तरफ ले जाना है, जब आगे बढ़ाना है, तो हमारे जैसे तरक्की के लिए जाने के लिए सबसे पहले इल्म की जरूरी है। जब हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप ये देखिए एक दफा हमारे ही प्राइम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, उन्हीं ने मंच पे एक प्रोग्राम उसमें बोल रहे थे कि मुसलमानों में बड़ा हुनर होता है, बड़े कामयाब और ब्रेन के, उन्होंने सब बोला था, ये खुद बोले थे प्राइम मिनिस्टर। उसका एग्जाम्पल इन्हें मगर एक दिया था कि वो देखिए एक स्कूटर खोलते हैं, पूरा स्कूटर का इंजन खोल के बांध देते हैं, तो वो इंजीनियर हैं, मतलब वो दिमाग के तेज हैं जहन। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हमारे घर के बच्चे, हमारे लोग, अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों को बहुत अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, सहूलियत दी, बस थोड़ा सा पॉलिश करना है, हम लोग को तराशना है। अल्लाह ने चाहे बहुत कामयाबी होगी, पूरी दुनिया में नाम रोशन होगा। और इस पे हमारा जज्बा, हम हर तरह से आपके साथ हैं, नाजिम भाई के साथ, जिस तरह जैसे चाहेंगे उस तरह से सपोर्ट करेंगे हम। और लखनऊ में जो मदद होगी, यूपी में कहीं भी मदद चाहिए होगी, और स्टेट में भी जो भी अपने साथ जो कुछ लोग जुड़े हैं वो भी जोड़ेंगे। बस इतना है, और बाकी इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूसरा कोई प्रोग्राम रखे फिर उस पर बात डिस्कस हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन, शुक्रिया। अभी मैं दावत देता हूँ जनाब इरफान साहब से, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी पहले तो नाजिम भाई मुबारक, आपने इतना अच्छा, काफ़ी सालों से मैं नाजिम भाई से जुड़ा हूँ और कई उनके एफर्ट्स माशाल्लाह जो है, और वो खुद माइक्रो फाइनेंस और मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे एक्सपर्टीज हैं, सारे लोग तजुर्बेकार हैं, पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर टू लाइफ, और एज ग्रुप आल्सो इज प्रीटी ओके। अब हम, आई वांटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन अ फ्यू थिंग्स रादर देन रूरल इकोनॉमी पे, तो ऑलरेडी तो एक्सपर्ट है यहाँ पे। तो ये मामला जो अपना सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी को आगे ले जाने का और लार्जर इश्यूज ऑफ थियोक्रेटिक कॉर्पोरेशन और बाकी चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि नहीं, दो तीन जो मैक्रो इश्यूज है जो वी हैव टू इंटरनलाइज, कि ये है कि भाई नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में हम देख रहे हैं, बड़ी अगली उसका जो देख रहे हैं यहाँ पे, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी एक फिनोमेना इंटरनेशनली हो गया है। तो ये नेशनलिज्म का जो सर्ज है अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके हर कंट्री में एक रियलिटी हो गई है। तो अब हम दी अदर का जो कॉन्सेप्ट है, हम और दूसरे, ये भी बड़ा राइजिंग कॉन्सेप्ट है हर जगह पे। तो ये सब चीज़ों, मैक्रो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक तरफ तो एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, जैसा नाजिम भाई का प्रेजेंटेशन बड़ा होलिस्टिक था, जैसा उन्होंने कहा रॉस का, एस्का का जो है, इसी तरह का जो है ना कि एसेंशियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज टू हैव क्लस्टर्स ऑफ वायबल सोशल ग्रुप्स जो सेल्फ सपोर्टिंग हो और ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है कि भाई जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ऐसा सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई दिस इज इजियर सेड देन डन, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसको हम, मेरा बस एक तवज्जो मैं इस पे देना चाहता हूँ, बाकी कंटेंट तो बहुत सारा निकल के आएगा आगे, मैं ये देना चाहता हूँ कि दिस हैज टू बी हैंडल्ड नॉट इन अ सिंगल चेन ऑफ इवेंट्स बट इन अ 5-part कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क। जैसा होता है कि पहली चीज तो हम पहले जो करते हैं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हर एक का अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है। पहली तो होती है एक ओवरऑल मैक्रो पॉलिसी, फिर दूसरी एक्सपर्टीज आती है स्ट्रक्चर की, कैसे स्ट्रक्चर अगर खराब हो तो इम्प्लीमेंटेशन खराब हो जाता है। तो एक पॉलिसी एक्सपर्टीज की ग्रुप अलग होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चरल ग्रुप अलग होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस, रिसर्च और बैकग्राउंड इनपुट की ग्रुप होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कि इम्प्लीमेंटेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत, दे आर नॉट गुड एट पॉलिसी बट दे आर एक्सट्रीमली गुड एट इम्प्लीमेंटेशन। तो और लास्ट में जो होता है फील्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, ये टीम होती है। तो 5-6 सेक्शंस में इसको अलग 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 कंपोनेंट्स को लेके हम इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल हम लोग इसको, इस चैलेंज को हम पार कर सकते हैं। मैं इसीलिए कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये इश्यूज है जो कंटेंट कितना भी अच्छा रहो, फायदा नहीं पहुंचा है, ऐसा हाल हमें फेस करना पड़ता है और कर रहे हैं हम लोग सालों से। तो मुझे लगता है कि नाजिम भाई, यू शुड हैव और मैं आई एम वर्किंग विद कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम दिल्ली, इम्पार और आइमिडा वगैरह, उनके जो फाउंडर्स हैं उनसे बात चल रही है हमारी कि भाई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन हो और सारे इदारों को जोड़े।
so that this becomes a movement rather than individual इदारा से MCCI ने कर रही है बहुत खूबी से, कोई और इम्पायर कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप होना चाहिए और सारों को कोऑर्डिनेट करें और एक नेशनल मूवमेंट की तरह ये फायदा हर मुसलमान के घर तक पहुंचे। फिर उसके अलावा एक भी है जो कोऑर्डिनेशन जो दूसरे ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करे, जैसा कि एक टीम ऑफ लॉयर्स हो, सोशल एक्सपर्ट्स हो, डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स हो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो, जो एक छोटी टीम बने और दे डोंट सी दिस एज अ मुस्लिम मूवमेंट बट एज अ इंडियन एक सेगमेंटल मूवमेंट हो, और जो इसकी ऑब्वियसली फॉलो आउट होगी बड़ी नेगेटिव, लोगों को कहेंगे देखो ये अपने आप देख रहे हैं, ये सब अपनी इंडिया बना रहे हैं, अपनी हमसे दूर जा रहे हैं, तो वो भी जो नेगेटिव प्रमोशन होता है उसको क्वेल करने के लिए और हार्मोनाइज करने के लिए एक ग्रुप स्पेसिफिक होनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स हो इस चीज में, मीडिया में और सोशल हार्मनी में एक्सपर्ट्स हो। तो बस आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थॉट कि भाई इफ दिस हैज अ ब्रॉडर मैक्रो फ्रेमवर्क तो हमारी सक्सेस की रेट जो है ना बहुत ज्यादा हो सकती है इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुश्ताक अली साहब जो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, हम उनको इंशाल्लाह मौका देते हैं। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज साफ आ रही है। जी, I mean, I've been going through everybody's suggestions and other things. Definitely काम बहुत बड़ा है और हर एक कदम से जो है ना शुरुआत होती है, जो फारूकी साहब ने कर दी है। मेरा अपना ओपिनियन ये था कि हम काम करते हैं एसएमई और एमएसएमई में, तो काफी बिजनेस सेगमेंट्स पे जो है ना उथल पुथल होती है, ऊंच नीच होती है, बिजनेस में जो है ना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ऑलमोस्ट जैसा कि फारूकी साहब ने बताया कि 90% लोग इन्फॉर्मल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। तो इन पे एक हमको काम करना पड़ेगा मेंटल टफनेस पे, क्योंकि डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि इंसान में इरादे की क़ुव्वत बहुत है। ऐसे कई मिसालें हैं तारीख में जो तबाह हो गए, हर चीज हो गए, फिर उठ खड़े हुए। तो वो हमें पैगाम देना होगा डेफिनेटली, और इसमें मसाजिद का बड़ा रोल है। हर जुम्मे के दिन एक ऐसा हमारे पास निजाम है कि चाहे कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, जुम्मे के दिन नमाज के लिए आ जाता है। तो उस मेंबर को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां से जो है ना हमें गुहार लगानी पड़ेगी, सोएओं को जगाना पड़ेगा, हम तारीख जगानी पड़ेगी, सब उनको दिखाना पड़ेगा, तो उससे हिम्मत आएगी। उसके अलावा एक प्रोसेस हम मिस कर जाते हैं। डेफिनेटली आइडियाज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है। जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं, जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां कंपनियों ने हासिल की हैं, उन्होंने एक प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है। तो हर सेक्टर के, जैसा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसा आपने बताया चमड़े का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, उसकी हर किसी के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। उसको बारीकी से हम समझ के उसके एक्सपर्ट्स को लेके एक प्रोसेस हम सेट कर दिया जाए, ताकि वो फार्मूला जो है हम सबसे शेयर करते जाएं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये बहुत जरूरी है। जैसा किसी ने बताया कि हर किसी की एक्सपर्टीज अलग, कोई पॉलिसी मेकिंग में अच्छा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा है, कोई ऑपरेशन में अच्छा है, तो वो हमको डेफिनेटली करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था यहाँ के जो भी डेफिनेटली ये तो मुस्लिम के नाम से चल रहा है, लेकिन 50% से ज्यादा आबादी और लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद करना चाहें और जो हमारे तरफ हमदर्दी रखते हैं। तो हमें उनको भी हमें जो है ना जोड़ना चाहिए इस चीज से, और दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प, क्योंकि हमारी ये जो कंप्लीट इंडिया का जो इकोनॉमी है, डेफिनेटली हमारा परसेंटेज अपना है, लेकिन सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। मान लीजिए आप शहरों में तो कुछ हमारा परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन देहातों में जहाँ पे हमारे लोग कम हैं, वहां पे भी बहुत ही हो जाएगी, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे नॉन मुस्लिम के सपोर्ट के बगैर। ये मैं एक कहना चाह रहा था। और एक दो बात और कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो है आज इतनी सस्ती हो गई है, तो हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर में भी जो है ना इसको थोड़ा सा हमें जो एजुकेटेड लोग हैं उनको थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहिए। एक आइडिया ये है, जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं एमबीए के, डिग्री के वगैरह के, हमारे लोग भी ओन करते हैं। कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कई माइनॉरिटी कॉलेज हैं, उन बात के लिए उन लड़कों नौजवानों को जो है सलाह के लिए, अलाइनमेंट के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको गाइड करने के लिए उनका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। आई मीन एनीबडी कैन गिव सम अलाइनमेंट, सम आइडिया, और किसी का बिजनेस चल पड़ेगा। ये है। और फंडिंग के ताल्लुक से जहां तक ये है कि सारी उम्मत जो है ना इनकी तरह है, तो डेफिनेटली सिर्फ ये अकेला नहीं है, हमें क्राउड फंडिंग के लिए भी सोचना चाहिए। कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन है ही हैं, बैतूल का अपना रोल है, ज़ात फंड हमारे पास है। उसके अलावा एक तबका हमारे पास ऐसा भी नाराइज हैं, और जो इन कंट्रीज के जो मुसलमान हैं, जो लोग हैं,
ज़कात के तौर पे बहुत अरब रुपए निकलते हैं, अरबों डॉलर खैरात होती है। उसके अलावा जो है ना इमदाद तौर पे जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए यूएस में है, उसके लिए $500 $1000 कोई मायने नहीं रखेगा। ही कैन डू द क्राउड फंड समबडी, ही कैन हेल्प आउट समबडी। उसको हमें इतना चाहिए किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी इदारे के थ्रू। हमें अब जैसा कि इन्होंने बताया कि चमड़े का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, ई कॉमर्स बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग और इसकी, उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये जब ये सारे छोटे छोटे इदारे जुड़ेंगे, हम लोग मिलेंगे, तो इसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क करके एक इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन, एक प्रोसेस, एक सिस्टम सेट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैं अपने तरफ से मैं मशवरा चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन, काफ़ी अहम आपने बातें बताई हैं। तो जब सवाल जवाब होंगे तो इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी मैं आगे बढ़ते हुए इंशाल्लाह दावत दूंगा। हमारे साथ माशाल्लाह से ख़वातीन भी जुड़ी हैं। तो मैं अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस फातिमा मुजफ्फर. She is a Federation of Muslim Women Organization chair from Tamil Nadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Yeah, walaikum assalam. We can hear you. First and foremost, I would like to congratulate the team and Jazakallah to Nazimuddin Farooqi Saab for calling for this program, and grateful to Dr. Asma Zahra, All India Muslim Personal Award के जो executive committee member हैं और हमारे ladies wing के जो convener हैं national, तो उन्होंने ही हमको कनेक्ट किया है प्रोग्राम से, तो शुक्रगुजार ही, and I'm finding it mashallah very well organized and very well run. Congratulate the team for it. It's been very beneficial hearing from all of you. Alhamdulillah, I represent the Waqf board in Tamil Nadu and also coordinate with the government, especially in the past 4 months. आप लोग सब जानते हैं कि जब ये तबलीग जमात का प्रॉब्लम आया है पैंडेमिक के वक्त, सबसे ज्यादा लोग जो दिल्ली में थे तमिलनाडु के थे, और ये बहुत बड़ा मसला यहाँ हो गया था कि हमारे ज्यादा लोग वहां पे अटक गए थे और उनके फैमिलीज यहाँ पे सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ा। तो सिर्फ पैंडेमिक नहीं, हम सोशल आउटकास्टिंग का भी है ना प्रॉब्लम यहाँ पे हैंडल करने का एक मसला खड़ा हो गया था हमारे लिए। तो उस वक्त में सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये हुआ कि हमारे पास तमिलनाडु में एक फेडरेशन है जिसमें पूरे पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। तो ये जो फेडरेशन हमको एकदम माशाल्लाह कामयाबी के साथ काम करने का एक मौका मिला, क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी था और हमारे यूनिटी का जो यूनाइटेड फ्रंट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहने की वजह से हम लोग गवर्नमेंट के पास भी जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड दे सके। And Alhamdulillah, after that, the triangle coordination committee was formed. I am talking on a totally different angle so that the panelists and the audience here can understand what exactly things worked out in Tamil Nadu and on a different perspective the time that I am allotted. Inshallah, in the end, I would like to talk about the financial matter also. Then Alhamdulillah, the triangle coordination committee with the Delhi government, central government and Tamil Nadu government was formed with a team of councillors to coordinate with the affected Muslim families in Tamil Nadu and the stranded Muslims in Delhi. So very first jihad for us was to represent to the government to not address them as Delhi Tabligh Jamaat Tamil Nadu people or Delhi returned Tamil Nadu people. We didn't want them to be isolated and called. So Alhamdulillah, I was part of the team when we had a one-to-one meeting with the Chief Secretary of Tamil Nadu, the entire police force and the bureaucracy in the Secretariat of Tamil Nadu, which was right under the Chief Minister. And Alhamdulillah, the way we put forth, and I personally put forth, and we saw to it that we were not isolated in this pandemic situation, number one. Then Alhamdulillah, we formed a helpline for this, run by the government. And in the helpline, a dedicated helpline was given only for the Muslims. And by Allah's grace, I have Mrs. Parveen Papa also as a panelist in this group, who's the president of the Social Reform Committee. Various NGOs, councillors, and social workers, we formed a team, male and female. And we coordinated through the helpline, reaching out to the families to the nook and corner of Tamil Nadu, and coordinated with more than 1,500 Tamil Nadu people stranded in Delhi. It was a very big ordeal. Was first for us to get our team together,
अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा टीम फॉर्म हुआ, उनका ट्रेनिंग हुआ अंडर द सर्वेलेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो है एनजीओ या प्राइवेट काम नहीं है, जो भी मैं आपके पास अभी ये पेश कर रही हूँ, ये सब जो काम हुआ है गवर्नमेंट के सर्वेलेंस के साथ और गवर्नमेंट के हेल्प के साथ ये पूरा काम हुआ है. हमको डेडिकेटेड लाइन दिया गया, 120 काउंसलर्स उसमें 24/7 हम लोग शामिल थे. कॉल्स दिया गया, हमको कॉल शीट्स दिया गया. अल्हम्दुलिल्लाह after 45 days they came back. I'm just coming to the end of my talk, sir. Yeah. I'm just coming to the end of my presentation. So this we could do. Why I shared this experience with you was, when a crisis and pandemic is there, we need to work first unitedly. Second, we need to work in tandem with the government. Only then we can be successful. All the points given here are, mashallah, very good and very, very effective. My humble addition to all the suggestions here is, any scheme we work, inshallah, work along with all the political, non-political parties, organizations in your state, and work under the surveillance of the government, which will give us results, inshallah. Further on, any added information needed regarding this, we are always here to support you and assist you. Jazakallah khair. So going forward, I'm going to invite Sister Zara Khan from Hyderabad. She is Muslim Women Development Society member. Ms. Zara Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Go ahead. सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी, अभी जो टाइम बहुत कम है, तो इसमें ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कनेक्टेड है यहाँ के अपने एरिया के ख़वातीन से, तमाम मोहल्ला से, तमाम एरियाज़ और जितने भी जोन्स हैं हमारे हैदराबाद में, 4 जोन्स. तो यहाँ पर हम जो मेन परेशानी अब जो फील कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों से फीडबैक जो ले रहे हैं, जब फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो 2 किस्म के लोग यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं. एक तबका वो है जो मजबूर, ज़रूरतमंद, परेशान है, जिनको सदका और खैरात और चैरिटी की ज़रूरत है और जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है. और एक तबका ऐसा है जो नौजवान है, जो माशाल्लाह स्किलफुल है और जो काम करना चाह रहा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो ये जो तबका हमसे राब्ते में है और कांटेक्ट में है लगातार, और कहना चाह रहा है कि क्या काम हम कर सकते हैं फिलहाल. तो हमारा जो मेन नेटवर्क है हमारे ख़वातीन का है हैदराबाद में, मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत, जो डॉक्टर अस्मा ज़हरा और मोहतरमा आसफा नदीम साहिबा, यानी इनके तहत काफ़ी यहाँ पर काम होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आगे मेरी और एक साथी बताएंगे. तो इसमें हम ये फील कर रहे हैं कि जो कारोबार छोटे मोटे काम करना चाहती थी ख़वातीन, जो कर रही थी, उनके तमाम काम बंद हो चुके हैं. अब फिलहाल वो काम करने के लिए बेताब है. जैसे कि टीचर्स हैं, तो कई लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर है. तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह, अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि एक टीचर से मेरा कांटेक्ट हुआ जो मैथ्स के बहुत अच्छी स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर है, काबिल टीचर हैं. लेकिन जब उनको बताई गई कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो वो कह रही थी कि मुझे तजुर्बा नहीं है, और वो घबरा रही थी कि ऑनलाइन में किस तरह पढ़ाऊंगी. तो इससे ये समझने आ रहा है कि हमारी कम्युनिटी में ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा यानी दूरी है और लोग इससे वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं. तो अब ये अहम जो चीज़ है हमारे लिए जो काम करना है कि हमारी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए. कि अभी हम जिस तरह हम जुड़े हैं, अभी तमाम हमारी मीटिंग जो चल रही है, तो ये एक काबिल गौर बात है. और दूसरी जो अहम बात नाज़िम साहब ने बताई है, जिस तरह से मसाजिद के लिए एक अहम रोल है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है जो हम अब फेस कर रहे हैं. जैसा कि केजरीवाल साहब ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, बस्ती क्लिनिक बनाए हैं, जहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर यूनिट बेसिक लेवल पे रिपोर्ट होते हैं तमाम मसाइल. तो हम भी ये कहें कि यहाँ भी एक हम मसाजिद में ये एक रोल अहम एक कम्युनिटी कमेटी बनाई जाए, जहाँ पर असेसमेंट किया जाए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. जैसा कि जुमा का दिन है, ज़ोहर के बाद से असर के वक्त तक एक वक्त रखा जाए कि जहाँ पर एक कमेटी से लोग राब्ते में आ सके, कांटेक्ट में आ सके, अपने परेशानियों को शेयर कर सके और वहाँ पर असेसमेंट लिया जा सके कि कितने लोग किस तरह से परेशानी से गुजर रहे हैं. कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर मिडिल क्लास होने के बावजूद इस लॉकडाउन में देखा गया कि बहुत ज्यादा परेशानी उठाए हैं. जो पड़ोसी भी उनके थे वो यानी बाखबर नहीं थे कि वो लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये जरूरत मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ कि
हर जगह जहाँ पर भी कमिटीज हो, ये कमिटीज के पास एक डाटा हो, रिकॉर्ड हो कि यहाँ पर का यूथ क्या कर रहा है, यूथ के लिए हम किस तरह गाइडलाइंस दे सकते हैं, उनको किस तरह यानी गाइडेंस दे सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो या कोई फाइनेंस के फील्ड में हो। हमारे पास गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों के पास जब कोई एक जैसा कि 10th पास करता है बच्चा, तो किस तरह से वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करे, सिर्फ इतने गाइडेंस के लिए भी एक्सपर्ट्स वो ढूंढते रहता है। तो हमारे पास एक पैनल होना चाहिए, हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए जहां पर मस्जिद में जाए तो उसे आसानी से वो कॉन्टैक्ट्स मिल जाए, जिससे वो अपने मशवरे कर सके, जिससे वो अपने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ रहबरी हासिल कर सके। और मैं सेकंड पॉइंट ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो हम माइग्रेशन देख रहे हैं, तो ये माइग्रेशन से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है। हर स्टेट में दूसरे माइग्रेंट्स आते थे और वहां पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ वो लोग काम किया करते थे। मैं एक मिसाल देना चाहूंगी छोटी सी कि जैसे कि कारपेंट्री वर्क है, तो तेलंगाना में तेलंगाना के लोगों को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि यूपी, राजस्थान, गुजरात ऐसे वहां के कारपेंटर्स को पसंद किया जाता। तो आप तेलंगाना में जब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कारपेंट्री अगर वर्क कराना चाहेंगे, फर्नीचर वुडन वर्क कराना चाहेंगे, तो आप सबसे टॉप प्रायोरिटी राजस्थान वर्कर्स को देंगे या यूपी के वर्कर्स को देंगे। लेकिन अब ये हाल हो गया है, क्योंकि ये राजस्थान, यूपी तमाम लोग जा चुके हैं, यहाँ पर तेलंगाना के लिए, तेलंगाना कारपेंटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से ये मिसाल के तौर पे मैं समझ रही हूँ कि हर फील्ड में जहां पर भी माइग्रेंट्स यहाँ से चले गए हैं, अपने अपने इलाकों से चले गए हैं, तो वहां पर उनके लिए जो लोकल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। तो ये अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट फायदा अगर उठा सकें हम और स्किल्स अगर डेवलप कर सकें उसी फील्ड में, तो ये बहुत ज्यादा अहम चीज होगी। और थर्ड जो है वो हम खवातीन को टेक्नोलॉजी से इक्विप करें, तो इंशाल्लाह खवातीन जो अपना रोल अब तक प्ले कर रही हैं और आगे भी प्ले कर सकती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है हम खवातीन के लिए। और साथ साथ जो यूथ है उनके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन किस तरह ये यूजफुल वे में इसको ले जाया जा सकता है, इंशाल्लाह आप तमाम से उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारी रहनुमाई करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरन, काफ़ी मालूमाती बातें आपने बताई हैं सिस्टर ज़ारा। अभी मैं आगे बढ़ते हुए आई एम नाउ गोइंग टू इनवाइट परवीन पापा फ्रॉम चेन्नई। Hello, can you hear me now? Yeah, Hello? can hear Yeah, you. I'm Yeah. Adil Parin Papa. I would like to stress one point. जो skill development है, I think this is immediate, instant. It can change one's life. And I've been working. I and मतलब मेरा group हम लोग इसी पे we are working on this for the past 5-6 years on skill development. हम लोग बच्चों को ये computer training, all the skills, all kinds of skills you are training them with, and immediately in 2 months they are able to get a job immediately. So फौरन उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है अभी. So that's what we have been doing. This one point I would like to stress on this panel. So we are very hopeful and positive about Tamil Nadu. Brother Junaid Khalid from Guwahati. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो नाजिमुद्दीन फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मौजू आज जो टॉपिक है वी आर डिस्कसिंग, बेसिकली माय सजेशन, आई बीन लिसनिंग टू अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर. My suggestion regarding the issue for upliftment of the community at this hour, basically what अभी कौम में ये चैरिटी वाला काम बहुत हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहा है, हर लेवल पे हर लोग कर रहा है इसको, लेकिन ये चैरिटी से कोई मसले का हल नहीं होगा. एक आप मतलब यू आर क्रिएटिंग ए टीम ऑफ बेगर्स, द मोमेंट यू आर फीडिंग देम एंड प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स, यू आर डूइंग नथिंग, you are creating a group of beggars amongst the community. So rather than doing that, इससे अच्छा है कि हम लोग इंशाल्लाह इसको एक तो इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम IGP जैसे होते हैं, इसको कर्जे हसाना हम दे दें, माइक्रो फाइनेंस जिसको कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस के तहत लोगों को हम, बल्कि वो चैरिटी वाला 10 लोगों का चैरिटी एक को दे के उसको हम अपलिफ्ट करें, उसको कर्जे हसाना एक लाइबिलिटी दे के, ताकि कम्युनिटी को ये लोग आगे ले जा सके. वरना एक you cannot keep on feeding these people like this forever. So my humble suggestion to all our members, जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पैनल में जितने भी हैं, सबसे गुजारिश है अपने अपने लेवल पे लोगों को सिलेक्ट करें. जैसे हम लोगों ने किया ज़कात का पैसा गुवाहाटी में, हम लोगों ने इस बार ये मशवरा किया इन लोगों को कितना बार हम ज़कात दें, कितना बार खाने का किट दे, कितना दे, तो हम लोगों ने लोगों को सिलेक्ट किया, 2 लोग
3 लोग 5 लोगों को सिलेक्ट करके 10 लोगों का जकात का पैसा उसको दिया, भाई आप एक बिजनेस शुरू करो और ये आपका कर्ज है हसाना, यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, सो दैट उसको ये नहीं लगे कि दिस इज आउट ऑफ चैरिटी, हालांकि हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, इसको ये ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसको हम लोग छोटे छोटे लेवल पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रोसेस करते हैं, तो आइंदा जो है ये in the long time inshallah we'll have very fruitful results in that. This is my suggestion inshallah. जज़ाकल्लाह खैरन। इकरामुल हक साहब, आप इंशाल्लाह अपनी राय का इजहार करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। Couple of points very clear. Number one, ऑर्गेनिक सेक्टर, जो इनऑर्गेनिक या इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट इट इज अ ऑर्गेनिक सेक्टर, माने इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ सेक्टर व्हिच हैज इमर्ज्ड बाय डिफॉल्ट, और what we actually are observing now, it is an integration between the formal and informal sector. So अभी जो पूरा ये disruption है, और इस disruption में whatever we are talking, I think हम लोग informal sector को formal sector के साथ कहीं ना कहीं link करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लोन देने की बात कर रहे हैं वो भी एक फॉर्मल सेक्टर की बात है, हम जो लोन देने की बात कर रहे हैं वो फॉर्मल सेक्टर की बात है। हम जो उनको स्ट्रक्चर, जैसे नाउ वी व्हाट मेरे परसेप्शन से व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड, और मुस्लिम्स के साथ, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन मुस्लिम इश्यूज और मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप इश्यूज, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं इट्स मोर ऑफ ए नेशनल और नॉर्मल लाइक इकोनॉमिक सिनेरियो। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के जो हिसाब से है, 3-4 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैं 2-4 एग्जांपल्स से शुरू करना चाह रहा हूँ।
सिमिलरली हम मुसलमान लोग मिनिस्ट्री में किस तरह से स्कीम्स आई हैं, किस तरह से सब्सिडीज आई हैं, किस तरह से, उसकी दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, उसकी लिटरेसी भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमें इनफैक्ट हर मिनिस्ट्री, चाहे ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ बना, देखिए सरकार ऐसा चीज है, आप अगर उसको पकड़, उसके पीछे भागे और पकड़ के रहें, बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशंस वो आपको दे देंगे। सो बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशंस वो आपको दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि सरकार की भरपूर हमें बेनिफिट लेनी है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स की हमें थोड़ी बेनिफिट्स लेनी होगी। ठीक है। मैं बस इसी कुछ पॉइंट्स और कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और सेशन भी रखेंगे, काफी अहम पॉइंट्स हैं। अभी मैं आगे बढ़ते हुए सिस्टर अस्मा नदीम को फिर से दोबारा से इनवाइट करता हूँ। सिस्टर अस्मा नदीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नाज़िमुद्दीन फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये वेबिनार आपने कंडक्ट किया है और काफ़ी बुजुर्ग लोगों से जो है मुझे ये सुनने का मौका मिला है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हासिल की हूँ। मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप तमाम से मैं शेयर करना चाह रही हूँ। पहली चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 15 साल से यहाँ पर मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए जो गरीब तबके के ख़वातीन हैं उनके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 80 to 100 ग्रुप्स हमारे मौजूद हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर भी मौजूद है, मेंबर्स भी मौजूद है और हम लोग प्रैक्टिकल वे में जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और लेडीज में जो काम जो हो रहा है, पहली बात ये पॉजिटिव पॉइंट ये है लेडीज में कि वो लेडीज जो है बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग बहुत ही आसानी के साथ लेडीज में जो है हम लोग ये काम बहुत अच्छे अंदाज से जो हम लोग कर सक रहे हैं। एक तो ये है कि लेडीज में हम लोग जो काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल बिजनेस हम लोग उनको जो हम लोग सिखा रहे हैं और काम वो लोग कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग मदद भी कर रहे हैं। तो ये चीज है देखिए कि ऐसे खवातीन में हम लोग काम कर रहे हैं जिसको क्या है सिर्फ पकाने के अलावा और कोई चीज नहीं आती, तो उनको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोग कायम करके फाइनेंस किस तरीके से हैंडल करना है, सेविंग्स किस तरीके से करना है, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारी चीजें बेसिक ग्रास रूट लेवल से जो है हम लोग उनको उठा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हम लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और ये एक खातून को जो है उठाने के खातिर हमको 5-6 साल हमको लग जाते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से जो है कुछ ना कुछ अपने पैरों पे जो है वो ठहर सके। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की तरफ से बहुत ही अच्छा हमारा ये काम हो रहा है और प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हम लोग तो यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके जरिए से हम लोग जो है जो काम कर रहे हैं ये लोग देखकर कॉपी करने के लिए अपने स्टेट्स में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये जो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर मौजूद है और काम आसानी से हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, तो बजाय सोसाइटी को हेल्प करने के बेनिफिशियरीज को जो है हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि लेडीज बोल के जो है एक तो पहली फर्स्ट प्रेफरेंस वहीं पर खत्म हो जाता है कि लेडीज क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि वो लोग बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए सोसाइटी एक ट्रस्ट करके जो है अगर सोसाइटी इतनी मेहनत कर रही है तो सोसाइटी को जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है, मेंबर्स मौजूद है, तो इन्वेस्टमेंट अगर इन सोसाइटी को अगर किया जाए तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ये काम किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी डेडिकेटेडली जो है मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप तमाम से जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है हम उम्मीद कर सकें। जज़ाकल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इनफॉर्मल इकोनॉमी की कोई जगह नहीं है और जो जगह है वो सर्विस इंडस्ट्री नेसेसिटी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमको जो स्किल्ड लेबर है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कायम करना होगा। इनको जैसे नाज़िमुद्दीन फारूकी साहब ने कहा कि सारे जो मेथड्स है, मस्जिद कमिटीज और सारी चीजें उनके थ्रू गाइड करना होगा और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट मुसलमानों के जहन में उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना होगा और हमको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में हमारे मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं लाना होगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बाद में और कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इनवाइट करता हूँ सिस्टर अर्शिया इरफान, जो सिस्टर अर्शिया इरफान फ्रॉम चेन्नई, शी इज अ सोशल रिफॉर्म कमेटी फॉर वुमेन। प्लीज कम इन। सिस्टर अर्शिया।
I think her speaker is not working. We can't hear you. Yeah, probably she got some network problem. So, Alhamdulillah, they were pretty good. Can we have Brother Tanveer Mirza as a final speaker of the day? Before we open the session for question and answer, Brother Tanveer. Yeah, we got a message from Sister Ashia. Her network is not working. So can we have Brother Tanveer Mirza? No, I think he is also not there. Okay. Is any other participant who would like to pitch in their opinion on this topic? Please raise their hand or just unmute and go ahead. Any other participant who would like to give their opinion? Okay, let's open the session for question and answers. Walaikum assalam wa rahmatullah. Ji, kaun? Anwar Ali Saab. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Ji, go ahead. Introduce yourself and go ahead. Brother Anwar Ali, just go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, Sister Khadija, just go ahead. जी, can I speak? Is it audible? Sure, go ahead. मेरा एक आप सबका जो concern है about the informal business sector and also about employment of the migrant labor. एक छोटा सा suggestion है, why I think starting an app like Urban Clap. Hello, सुनाई दे रहा आपको? जी, something like Urban Clap, जहाँ पे सारे trained, semi-trained migrants can be employed, or it should be a very successful thing because everywhere you look around, there is definitely a need for people who are trained in doing electrical work, plumbing work and all. हम उसको menial task समझते हैं, मगर the way that it is being charged, it is definitely a money making industry which can be tapped into. जी. तो ये मेरा एक suggestion था. Thank you. तो अभी इंशाल्लाह open session for question and answers. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, Sister Khadija, just go ahead. जी, can I speak? Is it audible? Sure, go ahead. मेरा एक आप सबका जो concern है about the informal business sector and also about employment of the migrant labor. एक छोटा सा suggestion है, why I think starting an app like Urban Clap, जहाँ पे सारे trained, semi-trained migrants can be employed, or it should be a very successful thing because everywhere you look around, there is definitely a need for people who are trained in doing electrical work, plumbing work and all. हम उसको menial task समझते हैं, मगर the way that it is being charged, it is definitely a money making industry which can be tapped into. जी. तो ये मेरा एक suggestion था. Thank you. तो अभी इंशाल्लाह open session for question and answers. अनवर अली साहब, आपका कोई सवाल? मोहम्मद अहमद साहब, कोई सवाल है आपका? जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माफी के साथ क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। पहले बार के नजीमुद्दीन फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप वासे साहब बहुत अच्छे होस्टिंग कर रहे हैं।
बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी मैंने सुनी हैं, अच्छी बातें हुई हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू यह है कि हम अभी लेबर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा इश्यू यह है कि हमारे पास मुसलमानों के पास सारा टेक्निकल जॉब है और हम अपने छोटे छोटे बिजनेस लेकर बैठे हुए हैं। अगर मैं मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश से, मैं यहाँ से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक वीवर्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। बड़ी मेहनत के साथ बेचारा धागा लाते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, उसको धोते हैं, कलर करते हैं, सिलते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं और फिर उस मार्केट में ले जाकर, जहाँ पर वो लोग इस तरह से बैठे रहते हैं लाला लोग, वो कहते हैं रख दो और आकर पेमेंट ले जाना। ये वजह क्या है? वजह ये लिटरेसी की वजह है। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो दो तरह, एक लिटरेसी की बात करते हैं केवल, हम उनकी बात करते हैं सिर्फ जो स्कूल गोइंग नहीं है, कि वो स्कूल जाएं, पढ़ें, अफसर बने या जो भी बने। लेकिन यहाँ पर दो तरह की लिटरेसी दिखाई देती है। एक तो ये स्कूल गोइंग या नॉट गोइंग वाली है। दूसरा वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस से ही लिटरेट नहीं है, उस बिजनेस में वो मजदूर बनकर रह गए हैं। लाइक वाइज आपका मुरादाबाद है, यहाँ कैंची इंडस्ट्री है, मेरठ में सीजर इंडस्ट्री है और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक लेबर या छोटे मैन्युफैक्चरर के लेवल तक रह गए हैं। मुरादाबाद में आप देखिए ब्रास इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। दिल्ली से एक पर्सन आता है, लग्जरी कार में आता है, एक सूट के साथ में होता है, वहां से सिर्फ सैंपल ले जाता है, आजकल इमेज मोबाइल में ले जाता होगा और फिर वो उसको एक्सपोर्ट करता है। विदेश में बैठा हुआ जो पर्सन उससे इंपोर्ट कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक्सपोर्टर बना हुआ है। हमें लिटरेसी वहाँ भी पहुँचानी है, बिजनेस लिटरेसी पहुँचानी है। हम लोगों के बीच में इस तरह के लोगों को अपॉइंट करें, उनकी वर्कशॉप्स कराएं, जैसे आज आपने इतना अच्छा वेबिनार किया है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे एक इस्लामाबाद बहुत बड़ी कॉलोनी है, सारे व्यूवर्स लोग रहते हैं, तो इनमें कोई ऐसा सेक्शन बनाया जाए, एक हॉल में एक जगह इनको इकट्ठा किया जाए, इनको बताया जाए कि आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डायरेक्ट कहाँ सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें तो कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग इन लोगों की होनी चाहिए। अनवर अली सईद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह। मुझे ये बोलना था कि पहले तो हम लोग नेटवर्क जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, सब हर जगह डेटाबेस होना चाहिए लेबर्स का और सारे टेक्निकल स्किल्स का। और गवर्नमेंट को हमको जो हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे हमको गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करना चाहिए कि 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको, उसमें लेबरर्स को इंश्योरेंस से कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो हुई अभी भी वो, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह नहीं है उनका, और पूरा 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अनसिक्योर्ड है। और तीसरी चीज, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ, मैंने काफी इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ काम किया सबका मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया, इंजीनियरिंग लर्निंग बनाया। और हमारे जो एमएसएमई में जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे बहुत सारे ग्रुप है, तो हम वहाँ से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, लड़कों को, सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल चीजें है, सो दैट दे बिकम एम्प्लॉयबल। और जो हमारे फर्म है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है एमएसएमई में, जिनके करोड़ के टर्नओवर है, उनसे हम कनेक्ट करके 2-2, 4-4, 5-5 स्टूडेंट वहाँ पे आकर सीख रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एग्जांपल मैं देना चाह रहा था कि इस तरह से सभी जगह पे भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप है और सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो वी शुड फॉर्म कैटेगराइज लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उसी तरह वर्कर्स, कारपेंटर्स, सबका एक कैटेगराइजेशन अगर है, हमारे पास डेटाबेस है एरिया वाइज, लोकल, ग्लोबल, नेशनल वाइज, तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होंगी लेबर्स की जी, और ये बहुत बड़ा केओस होगा जी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वी आर ओवर टाइम, तो अभी मैं क्विकली सिस्टर जुवेरिया को दावत देता हूँ। कैन आई रिक्वेस्ट सिस्टर जुवेरिया फ्रॉम कर्नाटका टू कम इन? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक्चुअली यहाँ पर काफी लर्नड पीपल भी हैं जो एक्चुअली ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। मेरा बस यही कि एक अपना व्यू रखना है यहाँ पर कि हमने जो हालात देखे हैं अभी, ये वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, नॉट द गवर्नमेंट, इवन द पीपल। सो अभी हम लोगों को, मेरा जो मुझे लगता है वो ये है कि वे कैनॉट गो अहेड विद द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर when it is concerned to minority upliftment. So we need to create new or just reform into action. Reform करना चाहिए हमारे minority upliftment प्रोग्रामों को। और साथ साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट अपनी रखना चाहूँगी कि जो we need a continuous working action team on this, कि गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह जो भी हैं वो
आम लोगों तक पहुंचाने का हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करना चाहिए, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है खास तौर पे उन लोगों के लिए, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वल्नरेबल्स जितने भी हैं, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर इन वास्ट पॉपुलेशन। तो उन लोगों से ग्रास रूट पे जब काम शुरू होगा तो तभी शायद हम लोग कुछ होप कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग आज इंटरनेट पे मीटिंग कर रहे हैं, बट देर इज 90% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड टू हैव एन इंटरनेट। तो हम लोगों को ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से काम करना चाहिए, इसका एक एक्शन प्लान अगर वाइडली सभी जो इंटरेस्टेड हैं उन लोगों तक पहुंच सके एक टीम बनाकर, तो इंशाल्लाह लोकल लेवल से शुरू करके हम लोग इन नेशनली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो और कोई सजेशंस है तो आप हजरात के कोई सजेशंस है तो सजेशंस। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन है, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। अहलन व सहलन। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब का, आप तमाम का पूरे सजेशन देख रहा हूँ मैं। इसके अंदर मेरा अपना सजेशन जो है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और इसके अंदर एक कमेटी ये बनाइए आप, एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी। एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी में ये होगा कि लायबिलिटी वाले जो कमेटी के इंचार्ज है वो फंड्स को, रिसोर्सेस को टैप करे, और एसेट्स की कंपनी वो उसको डिसबर्समेंट करे। तो ये कमेटी बनाने से इसके अंदर हमको दो काम करने हैं। एक, हमारे को विद इन इंडिया हम अपने रिसोर्सेस कैसा कलेक्ट करें, और दूसरा हमारे को ये है कि हमारे जो इंडियंस है, हम लोग जो है बेसिकली फ्रॉम इंडिया, एंड लास्ट 40-50 साल से हम इंडिया के बाहर है, बट स्टिल वी लव अवर कंट्री। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके अंदर, तो वो भी एक प्रोग्राम अगर रखे कि भाई इंडियंस है, एनआरआईज है या ओवरसीज इंडियंस है, तो हम भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसा करना चाहिए। और तीसरी बात मेरी ये है कि यहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बहुत बड़े ट्रस्ट है जो सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी जो लास्ट विजिट थी इंडिया की, जब वो आए थे। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो और कोई सजेशंस है तो आप हजरात के कोई सजेशंस है तो सजेशंस। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन है, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। अहलन व सहलन। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब का, आप तमाम का पूरे सजेशन देख रहा हूँ मैं। इसके अंदर मेरा अपना सजेशन जो है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और इसके अंदर एक कमेटी ये बनाइए आप, एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी। एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी में ये होगा कि लायबिलिटी वाले जो कमेटी के इंचार्ज है वो फंड्स को, रिसोर्सेस को टैप करे, और एसेट्स की कंपनी वो उसको डिसबर्समेंट करे। तो ये कमेटी बनाने से इसके अंदर हमको दो काम करने हैं। एक, हमारे को विद इन इंडिया हम अपने रिसोर्सेस कैसा कलेक्ट करें, और दूसरा हमारे को ये है कि हमारे जो इंडियंस है, हम लोग जो है बेसिकली फ्रॉम इंडिया, एंड लास्ट 40-50 साल से हम इंडिया के बाहर है, बट स्टिल वी लव अवर कंट्री। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके अंदर, तो वो भी एक प्रोग्राम अगर रखे कि भाई इंडियंस है, एनआरआईज है या ओवरसीज इंडियंस है, तो हम भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसा करना चाहिए। और तीसरी बात मेरी ये है कि यहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बहुत बड़े ट्रस्ट है जो सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी जो लास्ट विजिट थी इंडिया की, जब वो आए थे तो उनके साथ एक ट्रस्ट का चेयरमैन भी आया था। वो जब इंडिया के हालात देख के वो डिसाइड किया कि he donated $50 million फॉर फीमेल इंडस्ट्री। फीमेल इंडस्ट्री के लिए $50 million डोनेट किया वो ट्रस्ट, और उसकी जिम्मेदारी डिसबर्समेंट की दी गई यस बैंक को। यस बैंक बताया कि हमारे ब्रांचेस देहातों में भी है, गांव में भी है, तो डिसबर्समेंट का तो $50 million का डिसबर्समेंट हुआ लेडीज बिजनेस के लिए, ये अमेरिकन ट्रस्ट से। तो इस किस्म के ट्रस्ट यूरोप, अमेरिका में काफी है जो चाहते हैं कि भाई बिल्कुल गरीब इनफॉर्मल सेक्टर को कैसा अपग्रेड करे, कैसा फाइनेंसिंग करे। तो इसके अंदर भी एक कमेटी बना सकते हैं आप ओवरसीज की, जिसके अंदर इंडियंस भी हो, फॉरेन ट्रस्ट भी हो, किस तरीके से हम बेनिफिट ले। और दूसरा जो इंटरनल है आपके विद इन इंडिया, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है।
हम लोग पिछले 10 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम स्लम्स में काम कर रहे हैं। हम लोग तमिलनाडु, बिहार, हर जगह, हर स्टेट में हम लोग स्लम्स में काम कर रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट के बेनिफिट 95%। वी इन्वेस्ट 5% in the slums and we take 95% funds from the government community के लिए। जैसा सीनियर्स की हाउसिंग स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, और बिलो पॉवर्टी के वाइट कार्ड से राशन कार्ड है, उनको लीगलाइजेशन कराना, ये पूरा हम लोग 10 साल से कर रहे हैं पिछले। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू वर्क टुगेदर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वी हैव टू टारगेट फॉर अबाउट 25 years plan. In this 25 years plan, we have to achieve something every year as per our program. Thank you very much. जी हाँ, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशफिक अहमद लारी, कानपुर। जी कहिए। मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग और एक ऐसा ऑर्गेनाइज बने जो अपने हर जगह से छोटे छोटे सेक्टर से जो भी काम एक प्रोडक्शन होता है, जैसे गारमेंट सेक्टर से हम हैं, डगर मुरादाबाद ब्रास सेक्टर से है, इस तरह से लोगों का जो छोटे छोटे यूनिटों से जो माल कुछ परचेज करें और ऐसा ऑर्गेनाइज बने कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और ये लोकल बॉडी उसको हैंडल कर ले डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज बना के। जी मेरी आवाज जा रही है? माशाल्लाह, काफी अच्छा सजेशन। जी ऐसा हो जाने पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा छोटे सेक्टर और बगैर ऑर्गेनाइज के जो सेक्टर्स हैं उनसे भी उनको काम मिल जाएगा उनको। जी तो इंशाल्लाह इसको काम पे ले जाते हैं। काफी वक्त हो गया है और काफी ऐसे सजेशंस आए हैं, जैसे कमेटी बनाए, बिल्ड कमेटी और क्लस्टर ऑफ वेरिएबल सोशल ग्रुप्स बनाए। फारूकी साहब से कहेंगे कि ऐसा एक कमेटी बनाई जाए इंडिया लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे इस पे काम करे। जी बिल्कुल। हाँ, पॉलिसी एक्सपर्टीज ग्रुप बनाए, काफी अच्छे सजेशन है। ऑपरेशनल रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, फील्ड वर्कर्स, ये सारा काफी पार्टिसिपेंट की तरफ से अहम सजेशंस आए हैं। और जो आप लोगों का तजुर्बा है फील्ड पे जो काम करे हैं उसका भी जो आपने फीडबैक दिया है उन सबको हम नोट किए हैं। इसका आपको एक मिनट्स ऑफ मीटिंग इंशाल्लाह सबको भेजेंगे बाद में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर को लिंक करने वाली बात भी आई है। टेक्नोलॉजी को किस तरह लेवरेज करें, ख़ास तौर से इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं उनको टेक्नोलॉजी से किस तरह इस्तेफादा करें, इसके भी सजेशंस आए हैं। काफ़ी अच्छे सजेशंस आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी जनाब नाज़िमुद्दीन साहब से कहूँगा कि आप इस सेशन का इख्तिताम करें वोट ऑफ थैंक्स के साथ। ये निहाल अख्तर साहब कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निहाल अख्तर है। मैं बिहार से हूँ, किशनगंज जिले में, और किशनगंज जिले के आसपास इलाके में मैं महिला औरतों के साथ मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता हूँ, उनके लाइवलीहुड प्रमोशन पे। और यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है। पिछले ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होता है, खास करके नेपाल बॉर्डर एरिया है। उन लड़कियों को जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ट्रैफिक विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर है, उन सर्वाइवर को रेस्क्यू करके हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है माइनॉरिटी के लिए और इस इलाके में इसकी अहम ज़रूरत है। अगर इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अगर आप लोग अगर मिलके इस इलाके के लिए अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। 60% माइग्रेशन होता है जो वापस हो गए हैं, उन लोगों की फैमिली प्लस ये जो हमारे जो नीचे वल्नरेबल फैमिलीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड फैमिली है, ऐसे फैमिली को हम लोग आइडेंटिफाई करके इंटरप्रेन्योरशिप जो हम आप बात कर रहे थे कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे, एक प्लान वे में काम करके उन लोगों को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। अख्तर साहब आपका फोन नंबर और ईमेल भी शेयर कर दें ताकि हम आपसे मेरा rahat.kishanganj RAHAT rahat.kishanganj@gmail.com। मैं ये तंजीम पिछले 20 सालों से इस इलाके में काम करें। 27,000 लड़कियों को हमने रेस्क्यू का काम किया है, गवर्नमेंट के साथ रिहेबिलिट किया है, रिपेटेशन भी किया है। तो
وہ حالات کافی گمبھیر ہے، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے کافی سوچا، گورنمنٹ کے ساتھ اور ایجنسی کے ساتھ کام تو کر رہے ہیں، لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے اس علاقے میں. سلمان بھائی آپ کی رائے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس میں جب ہی ہو پائے گا جب اس کے ارننگ ہونا چالو ہوگا تبھی ہم کچھ چیز بتائیں گے کہ اس کو سسٹم پہ کیسے لاؤ، اور جب دو پیسے ہوں گے تبھی وہ سسٹم پہ لا پائے گا. آج کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کام ہو، اور کام کیسے آئے ایک انآرگنائز سیکٹر کے پاس، یہ دیکھنے کی سب سے امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ان سب تفصیلات سے بات کریں گے. اگلا سیشن کیا میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اگلا سیشن رکھیں گے اگر آپ لوگ کی رائے ہے تو 15 دن کے بعد ایک اور سیشن اسی طرح کا رکھتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ. یس ایبسلیوٹلی. رائے آ رہی ہے کہ سب راضی ہیں؟ انشاءاللہ ضرور ہونا چاہیے. چلیے انشاءاللہ میں ناظم الدین صاحب سے کہتا ہوں اس سیشن کو کنکلوڈ کریں. الحمدللہ میں تمام پارٹیسپینٹس کا اور ان کے اپنے مشوروں کا اور قیمتی ٹائم جو ہے ان لوگوں نے لگا کر ہمارے ساتھ جو گزشتہ 2 گھنٹے سے مسلسل سن بھی رہے ہیں اور اچھے انپٹس دیے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس بات کو اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہوئے ایسی نیٹ ورکنگ بنائیں فرسٹ فیز میں کہ جو آلریڈی ایکٹیو گروپس ہیں ان کو پہلے ایک جگہ کریں، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر جن سٹیز کے اندر ہم کو اپنا میسیج پہنچانا ہے وہیں سے بھی لوگوں کو جوڑیں. تو جب تک کہ فلی لاک ڈاؤن جو ہے ہمارا ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تو ہم جو ہے زوم سے انشاءاللہ ہیلپ لے کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ایک خوشی کی بات یہ کہ ہم ایک ایپ پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے واسطے ایک ایپ بنائیں گے اور اس ایپ کے تھرو لوگ جو ہے اپنی تمام چیزیں فیڈ کریں گے، پھر یہاں پہ جو R&D رہے گا اس کے حساب سے سجیشن دے گا اور لوکل یونٹ کو پھر اس سے کنیکٹ کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ پلاننگ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تبھی پاسبل ہو سکے گا جب آپ لوگوں کا کوآپریشن ملے، کیونکہ ہم کو اصل میں بہت زیادہ پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ ہمارے کو جو ہے فاسٹ وے میں آگے بڑھنا ہے، ورنہ دنیا ہم کو پیچھے کر جائے گی. آلریڈی جیسا سلمان بھائی نے کہا کہ 100 سال پیچھے ہیں ہم لوگ،
तो और पीछे हो जाएंगे। मैं फर्दन जितने लोग आज हमारे पास पार्टिसिपेट करे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी सिस्टर्स, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप लोग हमारे फोन पे बाद में टच में रह सकते हैं। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इससे राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह हम आपको फिर से इत्तला देंगे। अगले 2 हफ्ते बाद दूसरे सेशन की इत्तला देंगे, तो ज़रूर उस पर फिर आगे और फिल्टर आउट करेंगे आइडियाज़ को और एक मुनज़्ज़म तरीके से इसकी मुख्तलिफ बॉडीज़ और फोकस ग्रुप्स बना के इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द काम करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, हम सबको अल्लाह ताला इसमें कामयाब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।